namaste and welcome to Nigla Group presents The Tyson Talk Show, Season 7, co-powered by Nisol, media partners MPL News Live, News 5 Arunachal West News, beauty partners G3 Style Station, Amos Unisex Salon, hospitality partner Hotel Todo, Hotel Pips. Joining us today is a highly respected obstetrician and gynecologist who also pioneered our state Arunachal Pradesh's very first IV procedure. So join me in welcoming the incredible Dr. Johnson Bagra. Hello, sir. Welcome to the Tyson Talk Show. Thank you for having me here. Yes, we are honored to have you here. Thank you once again. So, how are you feeling, sir, being in the Tyson Talk Show? I'm feeling elated actually. मैं बहुत खुश हूँ. I'm very happy. I've been hearing about Tyson Talk Show and I've been following Tyson Talk Show for quite some time. तो फर्स्टली सर एक छोटा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. आप अपना इंट्रोडक्शन में भी अपना थोड़ा बैकग्राउंड, चाइल्डहुड, स्कूलिंग के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा ब्रीफिंग दे दीजिए. स्कूलिंग आई स्टार्टेड माय स्कूलिंग सेंट जेवियर स्कूल शिलोंग से मैंने स्टार्ट किया था लॉन्ग टाइम बैक इन द ईयर 86 मे बी. And after that, I had two schoolings after that in VKV Balijan, VKV Sher. After that, I went to RK Mission School, Alo. I studied there till class 10. 10th तक मैंने वहाँ पे पढ़ाई किया. After that, I went to Narottam Nagar, Ramakrishna Mission School, Narottam Nagar. फिर Narottam Nagar के बाद I cracked ये हमारा entrance exam, PMT crack किया. Then I went to do my MBBS in Indira Gandhi Medical College, Shimla, and in the year 2005 I cleared my MBBS, and after that I prepared for my post graduation. Then after clearing my post graduation in All India Entrance, I got selected and I did my post graduation in Guwahati Medical College and Hospital, Assam, and in the year 2010 I came back to our state and I started working. I worked in so many places as a freelancer. Then I joined Tagore Memorial Hospital for quite some time, and then I left it. Then again I joined BTM Hospital for maybe 5 or 6 months. Then I joined Niba Hospital in the year 2012, where I worked for around 11 years. And after 11 years, I bid goodbye to Niba Hospital, and me and my wife, we started our own setup, which goes by the name August Women's Clinic and IVF Center. I'm the medical director of August Women's Clinic and IVF Center, and that is my journey so far. So were you always aware कि बचपन से ही आपको पता था कि आपको डॉक्टर ही बनना है या गायनेकोलॉजिस्ट बनना है? बचपन से ही मुझे डॉक्टर बनना था. डेफिनेटली यस, I would say yes. मुझे लगता था कि डॉक्टर बन के I will help my society, I'll cure diseases. But gynecologist बनना मेरा कोई सपना ड्रीम नहीं था. I wanted to become a doctor. But after doing my MBBS, I came to realize कि obstetrics and gynecology में बच्चा डिलीवरी होता है. It is associated with lots of emotions. So मैं सोचा कि मैं gynecologist ही बन जाऊंगा. So when the results came out of All India, I opted for obstetrics and gynecology. Okay. So sir, you mentioned that right now you own your own women's hospital. Yes. So how was the journey of it? How did it start? And how is it going so far? The idea of having my own hospital was a bit different from what people they may seem like. I have my own hospital, I want to earn from my own hospital, but my perspective of मेरा perspective जो है hospital बनाने का था, that was a bit different. I wanted to bring modern technology in my setup, and I was not feeling independent to start to have those kind of setups in a hospital where I was working. So मैंने जो चाहा था कि मैं न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशंस जो भी हमारा स्टेट में लेके आ सकता है, वो उस चीज़ को करने के लिए ही मैंने ये अपना ये हॉस्पिटल खोला है, जिसमें बहुत सारा मॉडर्न इक्विपमेंट्स है. एंड द इक्विपमेंट्स विच आई हैव or the equipments which we have in our new hospital
शायद ऐसे इक्विपमेंट्स एंटायर नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत कम लोगों के पास ही होगा। ओके, तो सर कट ओके ओके सो सर व्हेन इट कम्स टू गायनेकोलॉजिस्ट, तो हम लोग का वुमेन का एक वुमेन का एक पर्सपेक्टिव रहता है कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास जब प्रॉब्लम होगा तभी जाएगा। तो सर आपके हिसाब से क्या है करेक्ट टाइम जाना, या फिर जो हम लोग सोचते हैं कि बीमार होगा तभी जाएगा वो सही है, या फिर इज देयर अ टाइम टू लाइक मे बी गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट? नहीं, ऐसे गायनोकोलॉजिस्ट के पास ही बीमार होने से जाना ऐसे नहीं है। देयर आर सो मेनी अदर स्पेशलाइजेशन आल्सो, बट एक फीमेल को अगर गायनोकोलॉजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रहा है तो दे शुड नॉट फील शाई टू विजिट अ गायनोकोलॉजिस्ट एंड टेल हर प्रॉब्लम्स। आपको डिले नहीं करना है, बिकॉज समटाइम्स सम प्रॉब्लम्स, सपोज एक लड़की को एक मेंस्ट्रुअल पेन होता है, अनबेरेबल मेंस्ट्रुअल पेन होता है, तो rather than suffering in silence, they should actually consult a gynecologist to seek help। क्योंकि बहुत सारा ऐसे conditions होता है जैसे कि menstrual pain, severe menstrual pain, endometriosis एक disease है जो बहुत during periods बहुत ही pain कराते हैं। तो ये सब छोटा छोटा problems जो है which can be detected early and it is totally curable। So कुछ भी हो, चाहे छोटा सा चीज हो या बड़ा सा चीज हो, दे शुड नॉट फील शाई टू कंसल्ट डॉक्टर, गायनोकोलॉजिस्ट, अगर सपोज किसी को एक गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो। So when we talk about periods or menstruation, there is this term called normal and abnormal menstruation. Yes. So can you आप थोड़ा और briefing दे सकते हो इसके बारे में, normal and abnormal क्या होता है? Usually any menstruation जो है उसको हम लोग normal तभी बोलते हैं when it comes in the range of suppose 21 to 35 days के बीच में menses हो रहा है। हाँ. और menstruation जो है usually last for 2 to 7 days, maybe 2 to 5 days, that is considered absolutely normal। और ये जो blood flow है average होना चाहिए, बहुत heavy bleeding नहीं होना चाहिए। menstrual cramps, mild menstrual cramps भी होगा, that is considered normal। bloating होगा, mood swings हो सकता है, these are considered as normal। So 21 to 35 days के बीच में अगर होता है, on an average 28 days का cycle होता है, that is considered as normal menstruation। But abnormal menstruation का मतलब है कि suppose किसी को menses 21 days से पहले आ जाता है या 35 days के बाद आता है, या menses होने में बहुत ज़्यादा bleeding होता है, unbearable pain होता है, abnormally उसको bloating हो रहा है और mood swings बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, बहुत severe pain हो रहा है, and which sometimes may be associated with fever, ये सब कुछ many other symptoms अगर हो रहा है, then even suppose किसी को menses हो रहा है during physical intimacy, so these are the menses which is we consider it as abnormal। Okay, so sir ये abnormal menstruation जो है वो harmful होता है क्या, and क्यों होता है? Why does it abnormal menstruation का बहुत सारे reasons हो सकता है। सपोज किसी को जैसे कि हार्मोनल फैक्टर्स हो सकता है, हार्मोनल फैक्टर्स में जैसे कि किसी को थायराइड का इश्यू है, किसी को पीसीओएस का इश्यू है, सपोज किसी को यूट्रस में पॉलिप हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, सपोज किसी को एंडोमेट्रियोसिस कुछ डिजीज हो सकता है, सपोज ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकता है, तब भी आपका मेंसेस बहुत एबनॉर्मल होगा। तो ये सब बहुत सारा कारण है, बहुत सारे रीजंस है जिसमें मेंस्ट्रुएशन एबनॉर्मल हो सकता है। Then that lady should actually seek help from a gynecologist to find out what are the reasons for these abnormal menstruation, so that it can be corrected on time। Okay. So sir, आप जब इसके बारे में बता रहे थे, एक टर्म भी यूज है PCOD, yes, polycystic ovarian disease। yes। So what is it? वो क्या है? Polycystic ovarian disease and polycystic ovarian syndrome, PCOD and PCOS, ये जो टर्म है, these are कॉमनली इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। किसी को बोलते हैं पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, एंड बट देयर इज सब्टल डिफरेंस बिटवीन पीसीओडी एंड पीसीओएस। पीसीओएस जो है सिंड्रोम है, दैट इज मच ब्रॉडर एस्पेक्ट में हम लोग यूज करते हैं, बट पीसीओडी जैसे अल्ट्रासाउंड में अगर देखा कि ओवरी बड़ा है, ओवरी में मल्टीपल सिस्ट्स हैं, मल्टीपल फॉलिकल्स हैं, देन उसको हम लोग पीसीओडी बोलते हैं। बट पीसीओडी मे बी जस्ट रिलेटेड टू ओवरी एंड इट मे नॉट बी हैविंग एनी मेजर सिम्टम्स, जैसे कि
ओव्यूलेशन किसी किसी को नहीं होता है, बट ओव्यूलेशन हो भी सकता है, इमेच्योर एग्स रिलीज करता है, लेकिन ज़्यादा सिस्टमिक जैसे कि बॉडी में ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है। बट PCOS जो है इसमें दिस इज यूज्ड एज अ ब्रॉडर एस्पेक्ट, जहाँ पे not only it is confined to ovary, but it is actually it spreads throughout the body. Systemic diseases भी होता है इसमें, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकता है इसमें, जैसे कि आपका ओव्यूलेशन जो है, ओव्यूलेशन जैसे कि मंथली एक बार होता है, ओव्यूलेशन नहीं होके एनोवुलेटरी साइकिल्स हो सकते हैं, मतलब विदाउट ओव्यूलेशन साइकिल्स हो सकता है, तब बच्चा होने में दिक्कत होता है। इसमें जैसे कि आपको हाइपर एंड्रोजेनिज्म बोलता है। हाइपर एंड्रोजेनिज्म मतलब आपका मेल हार्मोन्स बहुत ज़्यादा होता है, तो मेल हार्मोन्स ज़्यादा होने के कारण से किसी किसी को एक्नी बहुत ज़्यादा हो सकता है, किसी किसी को मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ वगैरह हो सकता है। और जिसमें अगर ओवरी में हम लोग अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं तो उसमें बहुत सारा फॉलिकल्स देखते हैं, मोर देन 20 फॉलिकल्स, आइडियली 8 to 10 फॉलिकल्स होना चाहिए, लेकिन अल्ट्रासाउंड में देखते हैं तो ओवरी बड़ा भी है, साइज बड़ा भी है, और उसमें मल्टीपल फॉलिकल्स एंड द नंबर इज मोर देन 20 इन ईच ओवरी। और इसके कारण से बिकॉज इट कॉजेज सिस्टमिक सिम्टम्स ऑल्सो, तो ये बॉडी में अफेक्ट जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। अभी इंसुलिन का काम क्या है बॉडी से, वेन एवर यू ईट समथिंग, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स आप ले रहे हो, तो इंसुलिन जो होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए होता है, एंड आपका पैनक्रियास आपको इंसुलिन बहुत रिलीज करेंगे। बट वंस व्हेन अ लेडी इज सफरिंग फ्रॉम PCOS, तब क्या होता है कि इंसुलिन तो बहुत रिलीज करेगा, बट इंसुलिन विल नॉट डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट्स, देन दीज कार्बोहाइड्रेट्स विल टर्न इनटू फैट, एंड बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो ओबीस हो जाता है कोई। फिर उसके कारण से बिकॉज ऑफ इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। ब्लड शुगर लेवल बढ़ने के कारण से आपको डायबिटीज हो सकते हैं इन फ्यूचर। ये सब जितना सारा फैक्टर्स है, दिस में लीड टू मेनी अदर डिजीजेस। आपको डायबिटीज पर से अगर किसी को हो गया तो वो बहुत अलग अलग बीमारी आपका बॉडी में सेट इन कर सकता है। दैट इज द रीजन PCOS इज मोर यूज्ड एज अ ब्रॉडर टर्म देन PCOD। ओके, तो सर आई हैव रेड समवेयर कि PCOD PCOS जो है ये दोनों अभी हमारे लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो आपको क्यों लगता है, क्यों, व्हाई? बिकॉज ऑफ द सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत है, जंक फूड इतना खाता है, पीपल आर नॉट एक्सरसाइजिंग, एंड पीपल आर बेड में ही रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, स्टक टू देयर फोन, दे आर मतलब खाने पीने में कोई वो नहीं है, और लाइफस्टाइल कुछ भी चेंजेस ने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे हेल्दी लाइफस्टाइल लीड नहीं करते हैं, इसीलिए। एंड प्लस हमारा जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटी बहुत डेवलप हो गया है, उसके कारण से हम लोग को बहुत सारे PCOD PCOS दिखाई देते हैं। अब जैसे कि इनफर्टाइल पेशेंट्स में इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग 20 to 30% ऑफ द पेशेंट्स, मतलब सपोज टोटल इनफर्टिलिटी पेशेंट्स को देखते हैं तो उसमें 20 to 30% PCOS या PCOD पेशेंट्स ही रहते हैं। तो सर देयर इज दिस सर्वाइकल कैंसर, यस, एम आई यूजिंग द टर्म करेक्ट? Yes. तो सर्वाइकल कैंसर जो हमारे स्टेट में बहुत बढ़ रहा है, लाइक Yes. बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग रेट बहुत ज़्यादा हो गया, तो सर कैन यू एक्सप्लेन मोर अबाउट व्हाट सर्वाइकल कैंसर, कैसे होता है एंड कितना बढ़ रहा है हमारे स्टेट में अभी? सर्वाइकल कैंसर ये कैंसर है, बच्चेदानी का मुंह का कैंसर होता है, एंड ये टिपिकली ये जो होता है ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है। इफ यू वांट टू नो द फैक्ट, आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर in women, after breast cancer, this is the second most common cancer in women in India. और इसका जो आप globally if you see India is a country, it is responsible for 1/5 of global cervical cancer cases. 1/5 of global cervical cancer cases, and it is 1/4 of global cervical cancer death. 1/4 of global cervical cancer death इंडिया ये कंट्रीब्यूट करता है। एंड इफ यू सी इंडिया में जो एज एडजस्टेड इंसिडेंस रेट है इंडिया का, ओवरऑल इंडिया का, उसको देखने से दैट इज 18, अराउंड 18 to 19 समथिंग है पर 100,000 वुमेन, मतलब 18 पर 1 लाख वुमेन। बट इन पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश में पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट हैज क्रॉस्ड
नेशनल इंसिडेंस रेट, एज एडजस्टेड इंसिडेंस रेट जो है पापुम पारे का है ऑलमोस्ट 27 to 28. So this is highest in Asia, which is followed by I think Mizoram. तो ये सर्वाइकल कैंसर जो है अरुणाचल में बहुत ज़्यादा इसीलिए है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस. अब मतलब इफ यू सी जो सर्वाइकल कैंसर है, दिस इज मोस्ट कॉमनली सीन इन रूरल एरियाज देन इन अर्बन एरियाज. तो अर्बन एरियाज में कम होता है और रूरल एरियाज में ज़्यादा होता है. तो सर इवन मी व्हेन आई रीड अबाउट वुमेन का सबसे हाई कैंसर जो होता है, मोस्टली वी लर्न अबाउट ब्रेस्ट कैंसर. ब्रेस्ट कैंसर इज समथिंग दैट वी लाइक पता चल ही जाता है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर के बारे में जब तक मैंने आपके लिए रिसर्च नहीं किया तब तक मुझे पता नहीं था. तो राइट नाउ आई थिंक हमको भी पता चल रहा है कि व्हाट्स एक्चुअली सर्वाइकल कैंसर. तो वो लाइक रीजन क्या है होने का, व्हाट आर द कॉजेस? सर्वाइकल कैंसर का बहुत सारा कॉजेस है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेस इज पुअर हाइजीन, पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन, पुअर पर्सनल हाइजीन. तो उसके कारण से भी है. एंड इट इज वन ऑफ द रीजंस हाई होने का. प्रोमिस्क्यूसिटी भी है. आप मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अगर रखते हैं कोई, तो उनको भी ये होने का चांसेस ज़्यादा रहता है. बिकॉज दिस इज mainly it is transmitted through human papilloma virus, which is actually a sexually transmitted infection. तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण से होता है. अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं तब भी होने के चांसेस बहुत हाई रहता है. सपोज एक वुमन है, बहुत ज़्यादा बच्चा पैदा कर लिया, वजाइनल डिलीवरी बहुत ज़्यादा कर ली, तब भी उनको होने का चांसेस रहता है. अर्ली मैरिज, अगर बहुत जल्दी शादी करता है, क्योंकि जल्दी शादी करेगा जल्दी एक्सपोजर टू सेक्सुअल एक्सपोजर होगा, तो तब भी चांसेस रहता है. और मल्टीपल बर्थ होने का चांसेस रहता है. तो इसलिए अर्ली मैरिज ये सब के कारण से भी होता है. और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज लैक ऑफ इट इज इग्नोरेंस. एंड दूसरा रीज़न ये है कि वन ऑफ द कॉमनेस्ट रीजंस में से एक रीज़न ये भी है कि पीपल दे डोंट वांट टू सीक हेल्प. दीज आर द रीजंस. But the most common reason is early marriage and poor personal hygiene, and it is commonly seen in rural areas than in urban areas. So why do you think कि अभी भी ये टॉपिक जो है it's a very hush टॉपिक, ये सर्वाइकल कैंसर हो गया, why do you think it's something people don't talk about? See, अगर किसी को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन है तो उनको शायद ये हेजिटेशन होता होगा कि बिकॉज दिस इज, अगर सपोज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस डिटेक्ट कर लिया और दिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, सो अ वुमन हु हैज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन doesn't feel comfortable to talk about it. That is ignorance actually. That is not coming up for screening. तो इसीलिए उनको सपोज किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, एबनॉर्मल डिस्चार्जेस हो रहा है, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो रहा है, इंटरकोर्स के समय ब्लीडिंग हो रहा है, तब भी हेल्प सीख करने के लिए नहीं आते हैं ना. दैट इज द रीजन ये इन्फेक्शन कंटिन्यूसली इन्फेक्शन होते 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 इट कम्स टू अ स्टेज वेयर इट गोज इनटू फुल ब्लोन सर्वाइकल कैंसर. ओके, so sir, is there any way to prevent cervical cancer? Yes, it is totally preventable disease, cervical cancer, provided proper screening होना चाहिए. If you see an example, चेन्नई में 80s में age adjusted incidence rate was around 42 something. तो बिकॉज चेन्नई जैसा एरिया, वहाँ पे एजुकेशन लेवल इतना हाई है, अवेयरनेस है, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, उसके कारण से इफ यू कंपेयर 80s और नाउ, द एज एडजस्टेड इंसिडेंट रेट हैज गॉन डाउन बिलो 20. तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड प्रॉपर गाइडेंस. तो अगर प्रॉपर स्क्रीनिंग होता है तो वी कैन डेफिनेटली ब्रिंग इट डाउन. नंबर 1, डायग्नोज इट अर्ली. Number 2, proper treatment. Number 3 is cervical cancer vaccinations are available. तो सर कैन यू टेल अस मोर, थोड़ा और आप जानकारी दे सकते हैं अबाउट सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशंस के बारे में? Yes, cervical cancer का vaccination is available. Of course, it is not integrated in national immunization schedule. तो हमारे पास दो टाइप, एक गार्डासिल है, एक सर्वावैक है. तो सर्वावैक जो है, दिस इज
अपना इंडिजिनस मतलब भारत सीरम जो है कंपनी है, भारत सीरम इंडिजिनस कंपनी है, उसने सर्वावैक एक वैक्सीन बनाया है जो 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से प्रोटेक्शन देता है। एंड WHO ये बोलते हैं कि 9 to 14 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन जो लड़की है उनको आप ये वैक्सीनेशन देना चाहिए 2 डोजेस। दैट इज प्री एक्सपोजर, नॉट पोस्ट एक्सपोजर, प्री एक्सपोजर। इसीलिए 9 to 14 ईयर्स में हम देते हैं इनको दो वैक्सीन देते हैं। सपोज इफ समबडी इज टेकिंग वैक्सीन सर्वावैक आफ्टर 15 years, 15 to 26 years or 25 years of age, then they have to take 3 vaccination. That is considered as post exposure. But there are other companies and the vaccine Gardasil. There are 2 vaccines Gardasil. एक है Gardasil, plain Gardasil, which covers 4 types of human papilloma virus or human papilloma viruses. 6, 11, 16 and 18 ये 4 types of viruses है जिससे प्रोटेक्शन देता है। बट अभी गार्डासिल 9 करके आया, बट दैट इज मोर एक्सपेंसिव एक्चुअली, एंड इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट 9 HPV टाइप्स, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टाइप्स, जैसे 6, 11 हो गया आपका, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58, ये इतना 9 टाइप्स ऑफ ह्यूमन पेपिलोमा वायरसेस से प्रोटेक्शन देता है। बट द कॉस्ट अगेन इट्स वेरी हाई, तो इसका कॉस्ट अराउंड 10 to 11,000 पर डोज होता है, पर डोज। एंड ये बोलते हैं कि these vaccines can be taken up to 45 years of age. 45 years of age तक हम ये वैक्सीन लेडी को दे सकते हैं, बिकॉज आफ्टर 45 years of age इतना इफेक्टिव नहीं होता है, तो 45 years of age तक ले सकते हैं। अगेन दिस सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जो है, ये सपोज कोई शादीशुदा लेना चाहता है और ये इफेक्टिव है ना नहीं है, तो डेफिनेटली कोई शादीशुदा होने से भी, इफ द एज इज लेस देन 45 years of age, it is 100% effective. If not, if it is not protecting against 16 and 18, it can always protect against other human papilloma viruses से प्रोटेक्शन दे सकते हैं। और इंडिया में क्योंकि मेजॉरिटी 80 to 90% of the cervical cancer is caused by human papilloma virus 16 and 18, तो 16 and 18 अगर है तो उनको 16 और 18 होता है, इसलिए हर वैक्सीन में आप देखिएगा कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 और 18 से प्रोटेक्शन देता है। सो इफ यू टेक क्वाड्रिवलेंट और गार्डासिल 9, आप कुछ भी लो, लेकिन 80 to 90% जो सर्वाइकल कैंसर होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 और 18 से ही होता है, तो प्रोटेक्शन तो आपको मिल ही जाता है। तो सर ये वैक्सीनेशन का कुछ साइड इफेक्ट नहीं होता? No, as far as the studies has come up, there is no side effect. But see, vaccination is not the only cure. It is early detection of the disease. That is why आपका एक सिंपल स्क्रीनिंग होता है, तो आपको स्क्रीनिंग करना चाहिए, स्क्रीनिंग करना चाहिए आपको, टेस्ट वगैरह सिंपल टेस्ट होता है, जैसे कि पेप स्मीयर। सिम्टम्स क्या होगा सर्वाइकल कैंसर का? सर्वाइकल कैंसर का सिम्टम्स जैसे कि आपको अनयूजुअल मेंस्ट्रुएशन होना, एक सपोज मेंस हो गया, मेंस के बीच में मेंस होना, एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, डिस्चार्ज के साथ साथ आपका ब्लड स्टेन हो सकता है, और एनी वुमन जैसे कि हस्बैंड के साथ रिलेशन रखने के बाद उसको ब्लीडिंग होता है, देन दैट इज अ रेड फ्लैग कि उसको सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस हैं। सो दीज आर द सिम्टम्स, बेसिकली सिम्टम्स होता है जो एक वुमन को अवेयर होना चाहिए, और दे शुड गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड गेट प्रॉपर्ली स्क्रीन्ड। ओके, थैंक यू सर। तो वी हैव मेनी मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स टू टॉक अबाउट, बट उससे पहले हम एक छोटा सा निगला कॉफी ब्रेक लेते हैं एंड स्क्रीन पे देखते हैं।
Sir, can you tell us कि infertility क्या होता है? What's infertility? इनफर्टिलिटी, सपोज एक कपल है, सब शादी हो गया और उनको 1 साल से ज़्यादा हो गया एंड दे हैव बीन ट्राइंग टू कंसीव एंड उनको बच्चा नहीं हो रहा है, इवन अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी, देन हम लोग वो कपल को इनफर्टाइल कपल बोलते हैं. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इनफर्टिलिटी. सर, किसी किसी का ये मानना है कि इनफर्टिलिटी जो होता है वो वुमेन में ही होता है. वुमेन आर द कॉज. No, absolutely incorrect, because male and female both are responsible for having baby. It is not कि फीमेल को ही टेस्ट कराना है, नहीं. मेल एंड फीमेल बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट, इक्वली रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि फीमेल से एग आएगा, मेल से स्पर्म आएगा. व्हेन दे फर्टिलाइज देन ओनली बेबी हैपन्स. सपोज मेल को स्पर्म नहीं है तो कैसे आएगा, या फीमेल को एग नहीं है तो कैसे होगा प्रेगनेंसी. तो इसीलिए बोथ ऑफ देम आर इक्वली रेस्पॉन्सिबल. सर, तो आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि वुमेन अकेला ही आया हो टू चेक? यस, यहाँ पे how do पता you नहीं, handle that? एक अरुणाचल प्रदेश में मेल्स आर सुपरमैन. Yeah. मेल्स को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट दिस इज अ टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट एंड दैट इज अ टोटली, मतलब उस जमाना का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे मेल अगर स्ट्रांग है तो अंदर से भी ठीक है. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. बिकॉज मेरे पास बहुत सारा ऐसे पेशेंट्स आता है, दे कम, सर मेरा I want to do all my tests, and if everything is okay with me, then I'll do my husband's test. तो ये मेंटेलिटी को they should give up this mentality. Both if किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, they should not take it as a taboo. टेबू जैसा नहीं सोए कि हमको सोसाइटी में क्या बोलेंगे, ये क्या बोले. अरे प्रॉब्लम है, बोथ ऑफ देम शुड कम टुगेदर, एंड हस्बैंड एंड वाइफ अगर दोनों आते हैं तो मैं दोनों का ही टेस्ट करूंगा ना. अगर सपोज मैं ओनली वाइफ का ही टेस्ट करता हूँ तो 50% इज डन, बट 50% विल बी लेफ्ट. सो आपका हस्बैंड सुपरमैन तो नहीं है ना कि आप उसको घर में रखेगा एंड यू विल डू ऑल द टेस्ट. ऐसे नहीं होता है. मेजॉरिटी ऑफ, इनफैक्ट आई हैव सीन मेनी ऑफ माय पेशेंट्स, मेल फैक्टर्स आर मोर. मेल फैक्टर्स ज्यादा है अरुणाचल में, क्योंकि फीमेल्स दे आर मोस्टली, फीमेल्स डोंट हैव दैट दोज बैड हैबिट्स एंड ऑल. मेल्स सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, मतलब जितना सारा जो नहीं करना है वो करता है. तो मेल्स को ये प्रॉब्लम होने का चांसेस बहुत हाई रहता है. आई हैव सीन मेनी ऑफ माय पेशेंट्स वेयर फीमेल्स डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, मेल्स हैव प्रॉब्लम. ओके, सो इनफर्टिलिटी लाइक कैसे होता है? क्या कोई like someone if he doesn't maybe smoke, drink, bad habits, no bad habits, but फिर भी infertile होता है? Yes, हो सकता है. Why? How? There are so many causes. अब इसको एक्सप्लेन करना तो बहुत मुश्किल है. सपोज जैसे कि अभी एक PCOD हो गया या PCOS हो गया जिसमें ओव्यूलेशन नहीं होता है फीमेल को, उससे हो सकता है. सपोज यूट्रस में सपोज ट्यूमर है, पॉलिप है, या फिर उसका ट्यूब्स ही ब्लॉक है, तब भी हो सकता है. मेल्स में सपोज मेल्स किसी को बचपन में चोट लगा हो, या फिर उसका टेस्टिस में स्पर्म प्रोडक्शन ही नहीं आ रहा, या फिर स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, तब भी स्पर्म बाहर नहीं आएगा. तो मेल एंड फीमेल दोनों को तो हो सकता है. बहुत सारा मल्टीपल प्रॉब्लम्स है. व्हेन वी सी फीमेल में देखते हैं तो फीमेल में हम लोग हार्मोनल चेंजेस को, हार्मोनल कॉजेस को छोड़ के सपोज रिप्रोडक्टिव, हम लोग एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है उसको ही देखते हैं. तो हम लोग वजाइना को देखते हैं, आपका सर्विक्स कैसे है, सर्विक्स में कुछ इन्फेक्शन है नहीं है. यूट्राइन फैक्टर देखते हैं, यूट्रस में कुछ ट्यूमर है, पॉलिप है, वो देखता है. फिर वी सी कि ट्यूब्स में कुछ प्रॉब्लम है ना नहीं, उसको ट्यूबल फैक्टर बोलते हैं. देन वी सी कि ओवरी में कुछ प्रॉब्लम है नहीं, ओवरी में कुछ ट्यूमर है, ओवरी में एग्स है ना नहीं है, वो सब देखते हैं. दीज आर रिप्रोडक्टिव. वी सी सीरियली वी इन्वेस्टिगेट ईच एंड एवरीथिंग. सिमिलरली मेल्स में भी हम लोग चेक करते हैं. मेल्स में हम लोग को सिंपल है, सीमेन एनालिसिस करते हैं, DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स करते हैं.
मेल्स को शुगर है ना नहीं है चेक कर रहा है, हाइपरटेंशन है ना, प्रेशर है ना, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है ना नहीं है, मेल को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है ना नहीं है, बहुत सारा चीज को देखना पड़ता है. तो आफ्टर सीइंग ऑल दिस ओनली वी कम टू अ कंक्लूजन कि इसको क्या एग्जैक्टली क्या ट्रीटमेंट देना है. तो सर जब हम लोग इनफर्टिलिटी का बात करते हैं, वी आल्सो कम अक्रॉस अ टर्म कॉल्ड IVF. यस. सो व्हाट इज IVF? लाइक आई थिंक बहुत लोगों को पता है, फिर बहुत लोगों को नहीं भी पता है IVF क्या है, तो आप उसके बारे में थोड़ा. IVF इज द फाइनल ट्रीटमेंट व्हेन एक कपल कंसीव नहीं हो रहा होता है. इवन आफ्टर डूइंग ऑल, सपोज हस्बैंड एंड वाइफ ने सब कुछ कर लिया, और सपोज वाइफ का ट्यूब्स का प्रॉब्लम है, या वाइफ का एग का प्रॉब्लम है, या हस्बैंड का प्रॉब्लम है, तो दिस इज द अल्टीमेट ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली देयर आर टू टाइप्स ऑफ IVF. वन इज सेल्फ IVF, जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ का ही एग्स एंड स्पर्म को यूज करेंगे, एंड वन इज डोनर IVF. तो सेल्फ IVF में वाइफ का एग्स को हम लोग रिट्रीव करते हैं. रिट्रीव मतलब आफ्टर 11 to 12 डेज ऑफ इंजेक्शन के बाद वन फाइन डे जब ओवरीज में बहुत सारा अंडा बन जाते हैं, तो वो अंडा को हम लोग वन फाइन डे एक छोटा सा एनेस्थीसिया देके 5-10 मिनट्स में हम लोग अंडा रिट्रीव कर लेते हैं. देन दैट एग्स, वो अंडा जो है उसको हम लोग लैब में शिफ्ट करते हैं. लैब में मतलब IVF लैब, एम्ब्रायोलॉजी लैब. तो हमारा जो एम्ब्रायोलॉजिस्ट है वो एग्स को सेपरेट करते हैं और अलग से रखते हैं. उसमें हस्बैंड का स्पर्म जो है फर्टिलाइज करते हैं, और जब वो फर्टिलाइज होके डे 3 दिन का बेबी या 5 डेज का बेबी, जिसको हम ब्लास्टोसिस कहते हैं, तो उसको फ्रीज करके रखते हैं. एंड आफ्टर 2 मंथ्स के बाद जब हम लोग वही एम्ब्रायो को यूट्रस के अंदर, फीमेल को यूट्रस के अंदर डाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. बट IVF इज नॉट गारंटीड. Yes, definitely it does not have any guarantee. अगर younger the couple, the better is the outcome. 25 to 35 years of age, this is the golden age है. ये गोल्डन एज में ही एक्चुअली एक फीमेल को कंसीव कर लेना चाहिए. अगर नहीं होता है तो विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम में ही IVF कराना चाहिए. बिकॉज IVF का सक्सेस रेट इफ यू सी, अगर लेस देन 35 years of age है एक कपल का, then success rate goes to 30 to 40% to maybe 50%. But if the age is more than suppose 40 or 35, then success rate goes down from 20 to 40%. Okay. तो 20 to 40% इस बीच में रहता है, कम हो जाता है. And if you go further above 40 years of age अगर हो जाता है, then success rate goes down further down. It goes down to around 8 to 20%. Okay. सो जितना आपका एज बढ़ते रहेगा, आपका IVF का सक्सेस रेट कम होते जाएगा. बिकॉज सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी दो कपल, सपोज एक कपल है जिसका सब कुछ नॉर्मल है, दैट डज नॉट गारंटी कि उनका प्रेगनेंसी होगा. तो IVF एक ऐसा प्रोसीड्योर है, इट इज अ साइंस वेयर देयर इज नो 100% गारंटी, एंड सक्सेस रेट डेफिनेटली इट गोज डाउन.
तो सर कोई कोई ऐसे भी कपल होते हैं जो लाइक मे बी दे ट्राई टू कंसीव वंस और ट्वाइस और नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट आईवीएफ के लिए चला जाता है ऑप्शन, लाइक दे ऑप्ट फॉर आईवीएफ. सो इज दैट नो, आईवीएफ का इंडिकेशंस होता है ना. अगर सब कुछ नॉर्मल है, 2 बार सिर्फ ट्राई किया, 3 बार सिर्फ ट्राई किया, उसके बाद नहीं हो रहा है, इफ दे आर गोइंग फॉर आईवीएफ, दैट इज फुलिश थिंग टू डू एक्चुअली. बिकॉज आप 1 साल अगर सपोज अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है, देन ओनली दे शुड एक्चुअली सीक हेल्प फ्रॉम अ गायनोकोलॉजिस्ट, not necessary an IVF specialist. They should seek a help from a gynecologist. और जब वो gynecologist पूरा सब कुछ टेस्ट करके देखता है कि सब कुछ okay, they'll give some medicines. And suppose कुछ factors है जिसमें IVF करना ही है, suppose मेल का sperm बहुत ही कम है, naturally pregnancy ही नहीं हो सकता है, then they give medicines उसको improve करने के लिए, उसमें भी improve नहीं होता है, then they go for IVF. It is after doing lots of मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं होता है, या फिर किसी का ट्यूब्स टोटली ब्लॉक है या एब्सेंट ट्यूब है, दे आर द वंस, उन लोग डायरेक्ट जा सकते हैं आईवीएफ के लिए. तो सर व्हेन इट कम्स टू आईवीएफ, मे बी अ कपल उन्होंने ट्राई किया, बहुत साल ट्राई किया, नहीं हुआ, एंड दे वांट टू ऑप्ट फॉर आईवीएफ, तो उनका फाइनेंशियल मार्जिन कितना होगा? लाइक देखो, फाइनेंशियल मार्जिन इन इंडिया, इंडिया में जो if you compare India with other countries, India is a country where जो financial जो चीज होता है, it is much IVF is much cheaper in India than in other countries. तो इंडिया में आपको financially you have to shell out around 1.5 to 2.5 lakhs. Okay. So sir, when it comes to IVF, is this the only option to have babies, or there are other options as well? IVF के अलावा तो adoption ही है. IVF के अलावा तो adoption ही है, but सिर्फ IVF नहीं है ना. जैसे कि हमारा बहुत सारा सरोगेसी भी है, तो सरोगेसी एक हो गया. दूसरा जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ वो खुद चाइल्ड बियर नहीं करता, मतलब चाइल्ड जो है एक सरोगेट मदर बियर करते हैं, तो वो एक ऑप्शन है. अगर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है या दोनों में कुछ ऐसे इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है जिससे वाइफ कैरी नहीं कर सकता बच्चा, देन दे कैन सीक हेल्प फ्रॉम अ सरोगेसी मदर फ्रॉम अ सरोगेसी क्लिनिक, रजिस्टर्ड सरोगेसी क्लिनिक. डियर पेरेंट्स, नेसोल अब लेके आया है होम ट्यूशन सर्विस नर्सरी से लेके क्लास 5 तक का स्टूडेंट्स के लिए. ये होम ट्यूशन सर्विस में हम लोगों का टीचर आपके घर पे आएगा और आपका बच्चा को उनके जो सब्जेक्ट्स है उस पर हेल्प करेगा, जिससे उनका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एकेडमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. वैसे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और जो स्टूडेंट जिसका फाउंडेशन वीक होता है वो कल को जाके पीछे रह जाता है. तो ये सब प्रॉब्लम ना हो बोल के हम लोगों ने होम ट्यूशन सर्विस स्टार्ट किया है. इसमें हम लोग बच्चा लोगों को कॉन्टिन्यूस गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, वो भी थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द एकेडमिक सेशन. तो अगर आपके घर में भी बच्चा है जो नर्सरी से लेकर क्लास 5 के बीच में पढ़ता है, तो स्क्रीन पे नंबर दे के रखा हुआ है, उस पर आप कॉल करके अपना बच्चा का सीट बुक कर लीजिए. थैंक यू. तो सर रिगार्डिंग आईवीएफ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है क्या जो कपल्स को फॉलो करना होगा, एंड कौन से कपल्स आईवीएफ ऑप्ट कर सकते हैं? IVF, earlier there was no rules and regulations, but government of India ने 18 December 2021 को एक law enact किया, which is called Assisted Reproductive Technology Act, ART Act, and it has been enforced. इसको enforce किया 25 January 2022 को. तो इसमें ये लॉ बनाने का मेन कारण था कि एथिकल प्रैक्टिस होने के लिए, एथिकल आईवीएफ में एथिकल प्रैक्टिस होना है. कौन कपल के एज कितना होना है, क्राइटेरिया, कौन गैमेट्स दे सकता है, कौन स्पर्म डोनर बन सकता है, कौन एग डोनर बन सकता है, उसका एक गाइडलाइंस बना दिया ताकि इट इज प्रैक्टिस्ड इन अ मैनर कि ये एथिकली हो, इसका मिसयूज ना हो, एंड इसको पेशेंट जो भी इनफर्टाइल कपल हो उसके साथ प्रॉपरली जस्टिस हो. तो ART Act 2021 which has been enforced
on 25th January 2022. तो इसमें सर्टेन गाइडलाइंस है जिससे आप IVF करते समय आपको ध्यान रखना है. Okay. तो सर अर्लियर जब हम लोग बात कर रहे थे अदर प्रोसीजर्स ऑफ हैविंग बेबी अदर देन IVF, तो आपने सरोगेसी का मेंशन किया था. Yes. तो क्या सरोगेसी कोई भी वुमेन कैन दे बी अ सरोगेट? नहीं, अगेन जब ये ART एक्ट इनैक्ट किया था, इनैक्ट जब किया गया था उस समय 25th December 2021 को वन मोर एक्ट वाज इनैक्टेड एंड वो जो है सरोगेसी को आपका सरोगेसी कैसे करना है तो उसके लिए सरोगेसी एक्ट एक बनाया. तो which again has been enforced from 25th January 2022. इसमें ये गाइडलाइंस देता है कि आपको कौन सरोगेट मदर बन सकता है, कौन आपको मतलब कौन सा कपल होगा. इंटेंडिंग कपल बोलता है. इंटेंडिंग कपल मतलब ऐसे कपल कौन सा है जो इसमें आप सरोगेसी का हेल्प लेके बेबी बना सकता है. ओके. तो उसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है, प्रॉपरली क्राइटेरिया दिया हुआ है. तो ये दोज क्राइटेरिया हैज टू बी फॉलोड. वो क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा. जैसे कि सपोज एक कपल है, अर्लियर इट वाज सेड कि कपल को शादी होके एटलीस्ट 5 years होना पड़ेगा, बट अभी ऐसा नहीं है. अब शादी होके एटलीस्ट 1 year होना पड़ेगा शादी को. देन कपल का जो इंटेंडिंग कपल है सरोगेट करने के लिए जो इंटेंडिंग कपल है, तो इंटेंडिंग कपल का जो है उनका कोई भी लिविंग इश्यू नहीं होना पड़ेगा. मतलब कोई भी बच्चा नहीं होना पड़ेगा. अगर बच्चा भी है, कोई एडॉप्टेड है, तब भी नहीं चलेगा. एडॉप्टेड बेबी भी नहीं होना है उनके पास. और उनके पास सपोज कोई बेबी है जो मेंटली रिटार्डेड है या फिर ऐसे मेडिकल कंडीशन से गुजर रहा है जिससे उनका बच्चा का कोई फ्यूचर लाइफ है ही नहीं, मतलब नॉट कॉम्पैटिबल विद लेटर ऑन लाइफ, ऐसा वाला कपल है, तो वो कपल्स लोग एक्चुअली हेल्प सीक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड डिस्ट्रिक्ट जो सरोगेसी बोर्ड है वहां से क्लियरेंस लेटर आना पड़ेगा. फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट जो सरोगेसी बोर्ड जो क्लियरेंस लेटर देगा, दैट विल कम टू स्टेट सरोगेसी बोर्ड. स्टेट सरोगेसी बोर्ड फाइनली इफ दे गेट द सर्टिफिकेट ऑफ क्लियरेंस कि ये कपल आप सरोगेसी के लिए जा सकते हैं, देन ओनली दे कैन गो टू अ सरोगेसी क्लिनिक एंड डू द सरोगेसी. यस. एंड प्लस सरोगेसी में अभी ऐसा है कि इट इज कॉल्ड अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी. अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी का मतलब ये है कि देयर शुड नॉट बी एनी मनीटरी कंपनसेशन. पहले क्या होता था कि कमर्शियल सरोगेसी होता था. एनी पर्सन जो है जैसे कि बाहर कंट्री से कोई आता है, इंडिया में बहुत सस्ता में सरोगेट मदर मिल जाते हैं, तो उन लोग पैसा से खरीद के उनका बच्चा पालने देता था, सरोगेट मदर बनाता था. नाउ ये एक्ट जो है इट हैज स्ट्रिक्टली मेंशन कि जो कपल है दैट शुड बी इंडियन सिटीजन कपल होना चाहिए, और जो सरोगेट मदर है तो सरोगेट मदर शुड बी मोर देन 23 years of age and less than 35 years of age. और उनका जो उस बीच में कोई भी मनीटरी कंपनसेशन नहीं होगा. दैट शुड बी एंड प्लस लेकिन मनीटरी कंपनसेशन नहीं होगा, लेकिन जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस होगा उसको ही बियर करना है. अच्छा सर, मैंने ये कहीं पे ये भी पढ़ा था कि सरोगेसी के थ्रू IVF के थ्रू जो बेबीज होता है दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द नेचुरली
on babies. No, So, no, correct that it. is totally incorrect. Okay. Because it is same as naturally conceived babies. Okay. It is totally same. मतलब कुछ भी difference नहीं है. Okay. So, sir, when we talk about IVF and surrogacy, we also come through the term को जो अभी बहुत popular हो रहा है, egg freezing. Yes. So, tell us more about it. Egg freezing, it sounds very lucrative और बहुत Yeah. अच्छा लगता है सुनने के लिए. But egg freezing and एक fashion में है जैसे भी है. But to tell you, egg freezing आप जैसे कि suppose किसी एक लेडी को उन लोग ही करना चाहिए egg freezing जो suppose किसी लेडी को suppose कैंसर है. सपोज कैंसर है और उनको कीमोथेरापी लेना है, उनको रेडियोथेरापी लेना है, तो बिकॉज रेडियोथेरापी एंड कीमोथेरापी से ओवरी का जो रिजर्व होता है, एग का रिजर्व बहुत कम हो जाता है. तो वो लेडीज को फ्यूचर यूज के लिए आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट के बाद में फ्यूचर में उनको अगर बच्चा चाहिए तो वो एग्स को पहले से ही निकाल के फ्रीज करके रख सकते हैं. इट कैन बी केप्ट फ्रोजन फॉर 10 years और मोर, डिपेंडिंग अपॉन आपका कौन सा ART क्लिनिक में या ART बैंक में आप वो एग को फ्रीज करते हैं. बट यू शुड ऑलवेज नो अबाउट द मिथ एंड फैक्ट. इट साउंड्स वेरी गुड टू फ्रीज द एग्स, लेकिन आपको ये भी एक फैक्ट है कि वंस यू रिट्रीव द एग्स 5 years डाउन द लाइन, सपोज 5 साल के बाद वो एग को वापस लेते हैं और निकालते हैं, तो वो एग का कंडीशन वही सेम कंडीशन, गुड कंडीशन में होगा बोल के जरूरी नहीं है. तो सपोज 10 अंडा फ्रीज करके रखा है एंड आफ्टर 5 years वो अंडा जब निकालते हैं उसमें से 7 eggs खराब भी हो सकते हैं. ओनली 3 कैन बी यूज्ड, मतलब 3 इज इन अ गुड कंडीशन टू बी यूज्ड. बट अगेन वो अंडा जो है उससे बच्चा होगा बोल के वो भी जरूरी नहीं है. तो इट साउंड्स गुड to hear about egg freezing and it sounds very fashionable, but उनको ही करना चाहिए egg freezing जो सचमुच जिसको ज़रूरत है. जैसे कि सपोज किसी को कैंसर है, सपोज someone is very busy and wants to start later on in their life, आपका family later on in their life को सपोज 40 में कोई start करना चाहता है and they don't want to bear children for, तो सपोज किसी को बहुत ज़रूरत है उनको ही करना चाहिए. It should not be done out of fashion. Okay. So, sir, there's this term, high-tech term एक यूज होता है, laparoscopic surgery, Yes. keyhole surgery. Yes, yes. वो क्या surgery है? Can you tell us more about it? Laparoscopic surgery long time back 80s में इंडिया में आया था. where ओपन सर्जरी का मतलब है आपको बड़ा सा पेट काट के चीरा लगा के ऑपरेशन करना होता है. बट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इज सर्जरी वेयर की होल, मतलब छोटा छोटा छेद करके आपको ऑपरेशन करते हैं, बड़ा से बड़ा सर्जरी भी करते हैं. नाउ पीपल डोंट ऑप्ट फॉर ओपन सर्जरी, दे ऑप्ट फॉर मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी जिसमें पेशेंट को आज ऑपरेशन किया वी कैन डिस्चार्ज टुमारो ऑल्सो. बड़ा से बड़ा सर्जरी होने से भी एट द मोस्ट द हॉस्पिटल स्टे उससे कम हो जाता है और पेशेंट का रिकवरी फास्टर होता है. तो इंडिया में 1980s से लेके अभी तक जो लैप्रोस्कोपी स्पेशली गायनेक फील्ड में हमारा बहुत सारा एडवांसमेंट्स हुआ. नाउ वी आर शिफ्टिंग नॉट जस्ट टू 3D लैप्रोस्कोपी, जैसे 3D लैप्रोस्कोपी हो गया. 3D लैप्रोस्कोपी वेयर वी सी थ्रू चश्मा पहन के ऑपरेशन करते हैं और उसमें विजन का क्लैरिटी, पहले अर्लियर 2D होता था, नाउ 3D. नाउ वी आर शिफ्टिंग फोकस टू रोबोटिक सर्जरीज. तो रोबोटिक सर्जरी में भी हम लोग आ रहे हैं. तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी नाउ वी आर शिफ्टिंग मोर टुवर्ड्स रोबोटिक सर्जरी बिकॉज कन्वीनियंस ऑफ ऑपरेटिंग एंड पेशेंट को प्रॉपरली क्योर करने के रोबोट्स आर नाउ टेकिंग ओवर. Okay. तो compared to open surgery. Yes. Compared to open surgery. Yeah, compared to open surgery, it's better. Laparoscopy is better. Much option. better. Much better. Okay. So, sir, abhi you are a gynecologist Yes. and obstetrician who works for women's health. Yes. So, abhi what are you doing to improve women's health much more? See, मेरा तो vision था, I wanted to bring advanced technology, especially in the field of laparoscopy and infertility. तो the place where I'm working, अभी जैसे कि मैं जो सर्जरी करता हूँ और मेरा जो इंटेंशन था कि आई वांटेड टू स्टार्ट माय ओन थिंग, तो मैं 3D लैप्रोस्कोपी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में लेके आया.
इनफैक्ट 3D लेप्रोस्कोपी जो सिस्टम, जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो सिस्टम है, दिस इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू ब्रिंग। एंड इंडिया में जो मैंने लेप्रोस्कोपी इंस्टॉलेशन किया है, दैट इज़ जर्मन मेड लेप्रोस्कोपी सिस्टम। एंड नॉर्थ ईस्ट में ऐसे बहुत कम जगह है जहाँ पे इस तरह का लेप्रोस्कोपी सिस्टम इंस्टॉल किया है। तो इंडिया में ही मेरा 100th है। तो आप सोच के देखिए कि दिस लेप्रोस्कोपी सिस्टम और अरुणाचल प्रदेश में तो कहीं पे नहीं है, मेरे सेंटर में ही है। प्लस मैंने IVF में जो हमने यहाँ पे जैसे ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है, वो मशीन इंस्टॉल किया है। वी हैव इंस्टॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट कल्चर। ब्लास्टोसिस्ट मतलब डे 5 का एम्ब्रायो को कल्चर करने के लिए हम लोग का जो मशीन है वो भी है। मैंने अपना फोकस रखा है इनफर्टिलिटी एंड लैप्रोस्कोपी एंड प्रेगनेंसी एंड डिलीवरीज, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज एंड डिलीवरीज को मैं देखता हूँ, मैं टैकल करता हूँ। एंड आई जैसे जैसे समय चलते रहेंगे, आई विल ट्राई टू ब्रिंग मोर एडवांसमेंट इन माई फील्ड। So sir, आप इतना कुछ कर चुके हो, as I've mentioned earlier as well, you are the first person who brought the IVF procedure in our state. तो आप बहुत कुछ कर चुके हैं, and right now about the laparoscopic as well. तो how do you motivate yourself? आप खुद को inspire कैसे रखते हो to continue doing whatever you are doing? I sleep for 5 to 6 hours at the max, maybe 5 hours. मैं जब क्लास 3 या 4 में था, I used to see my seniors. They used to wake up at 3 a.m., 4 a.m. So I also used to wake up at 3 a.m., 4 a.m. I used to study a lot. When I became a doctor, the same habit followed actually. मैं सुबह I wake up at 5 a.m. I go to hospital. सुबह 7 a.m. से मेरा OT वगैरह शुरू हो जाता है, ऑपरेशन 2-3 ऑपरेशन करते हैं। Then मैं ये OPD बैठता हूँ, go back at 5 and I come back home by 8:30, 9 ऐसे तक मैं घर आ जाता हूँ। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी it comes from within actually. When you want to do something, you have to do it from your heart. तो मेरे लिए this field is and the hospital where I'm working and मेरा जो स्पेशलाइजेशन है, मैं सोचता हूँ मुझे ये करने में बहुत मज़ा आता है। तो when you do something with all your heart and when you enjoy doing it, then there is थकान को महसूस ही नहीं होता है। That keeps me motivated all the time. Plus मैं देखता हूँ कि because I have lots of staff, we have staffs. So if I continue to work, if I work and lead from the front, then मेरा स्टाफ भी काम करेंगे, हमारा स्टाफ भी काम करेगा एज अ फैमिली। ऐसे कुछ मैसेज तो नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू टेल बिकॉज आई एम वेरी इंस्पायर्ड विद दिस कि व्हेन वी वर बोर्न वी कम विथ नथिंग, देन वी स्ट्रगल फॉर एवरीथिंग एंड देन वी गो विथ नथिंग। हम जब आते हैं तो खाली हाथ आते हैं, देन हम बहुत स्ट्रगल करते हैं एंड देन व्हेन वी लीव विथ नथिंग। सो इन बिटवीन इन दिस व्हेन वी कम विथ नथिंग एंड व्हेन वी लीव नथिंग, ये जो स्ट्रगल पीरियड है, दैट स्ट्रगल शुड नॉट बी जस्ट फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। एंड मेरा ये हमेशा रहा है कि आई वांट टू गिव बैक समथिंग टू सोसाइटी। सो आई डू अ लॉट ऑफ चैरिटेबल सर्जरीज। जिनको सचमुच तकलीफ होता है तो उनको मैं एज अ चैरिटी में ऑपरेट करता हूँ। आई हैव बिन टू आलो, आई हैव बिन टू पासीघाट, आई हैव बिन टू Tomarova Institute of Health and Medical Sciences. I've operated in almost all the hospitals across Arunachal Pradesh where I give free services. I really felt like आज मेरा अपना पर्सनल गायनिक के साथ में एक पर्सनल सेशन हो रहा था जैसा लगा. So it was great. Thank you so much for coming once again. Thank you for having me. Yes. So with this, the episode of today ends here.